see, when we talked about cost of equity, so we talked about we can calculate this cost of equity as risk-free return plus beta into RM minus RF. Okay, we can calculate. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो किया था हम लोग ने, CAPM ही है ना ये तो कल हमने डिस्कस किया था कि ये रिस्क फ्री रिटर्न मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, इसको डिस्कस किया था। बीटा की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए बीटा हम लोगों का दो तरीके से निकल सकता है। वन इज कॉल्ड एज रिग्रेशन बीटा, वन इज कॉल्ड एज बॉटम अप बीटा। One is called as regression beta, and one is called as bottom up beta. So question is, how do we calculate beta? So yes, how can we calculate beta? That is covariance of stock and market divided by variance of market. यही होता है। Beta tells us sensitivity of a stock movement in relation to the market movement. That is called beta. Yes. Now, one method to calculate beta is that I simply regress the data set of the company. For example, let us say I am valuing JK Tyre. So what is ये bottom beta का regression beta का बता रहे हो ना? हाँ, पहले मैं रिग्रेशन को बता रहा हूँ, फिर इसके ऊपर आऊंगा। मैं बता रहा हूं कि बीटा कैसे निकल सकता है। क्लियर होता है? बीटा को कैसे निकाल सकते हैं? आपने यही फॉर्मूला पढ़ा होगा आज तक। वेरिएंस एम क्या है? मार्केट, वेरिएंस ऑफ मार्केट, ठीक है। कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट एंड डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। So if I want to calculate beta for JK Tyre, so what I do, I take the data set of JK Tyre, I take the data set of market, market means index, I use this formula and calculate the beta. एक तरीका तो ये है। क्या ये पॉइंट क्लियर होता है? एक तरीका तो ये है, like covariance of the stock and the market. हाँ, स्टॉक मार्केट में क्या आ गया? the entire industry, index, broad index. So for example, if we are talking about US markets, तो हम बोल सकते हैं S&P 500 and JK Tyre, मतलब for example. हाँ, for example S&P 500 and I am valuing a company called PepsiCo. तो हमने क्या किया, 3 to 5 years का डेटा S&P 500 का डाउनलोड किया, उसी सेम डेट्स का पेप्सिको का 3 to 5 years का डेटा डाउनलोड किया, और दोनों को हमने क्या किया, इस फॉर्मूले के बेसिस पर दोनों का हमने पेप्सिको का क्या निकाल दिया, बीटा निकाल दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर होता है? ठीक। एक दूसरा मेथड भी है जिसके थ्रू हम बीटा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगेन जेके टायर का बीटा निकालना है। एक तरीका तो क्या था, वन मेथड इज दिस। व्हाट इज द अदर मेथड? अदर मेथड इज I calculate the beta of JK Tyre on the basis of its peer companies beta. मैं कहता हूं कि जो इसकी peer companies हैं,
मान लीजिए पीयर कंपनीज क्या है, एमआरएफ? Like all the peer companies की only one peer group? नहीं नहीं, जितनी पीयर कंपनीज है, All. not on one peer company, on the basis of peer companies we can say peer group. Okay, so मान लीजिए we have these three peer companies, these three companies are the peer companies to JK Tyre. इन्होंने क्या किया, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए एमआरएफ का बीटा है 1.2, अपोलो का बीटा है 1 और सीएट का बीटा है 0.8, लेट अस अज्यूम. So on the basis of peer company beta, we are saying because this JK Tyre belong to the same industry, so whatsoever is the on an average beta of this peer group, so average is coming out as 1, for example. So it means what we are saying, whatsoever is the, we are calculating the beta of JK Tyre on the basis of its peer companies beta. तो हम JK Tyre का बीटा निकाल रहे हैं किसके बेसिस पर, पीयर कंपनीज के बीटा के बेसिस पर. उसी अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, बॉटम अप बीटा बोलते हैं. क्या ये पॉइंट क्लियर होता है? So it means in case of bottom up beta, we are calculating it on the basis of what? We are calculating it बीटा. तो अगर मैं बात करता हूं तो JK Tyre का कितना बीटा हो जाएगा, अगर मैं बाकी कंपनीज के बेसिस पर निकालने की बात कर रहा हूं तो. सो एमआरएफ का 1.2 है, अपोलो का 1 है, सीएट का 0.8 है, तो JK Tyre का कितना होगा? यस, कितना होगा JK Tyre का? इसका एवरेज ना, इसका एवरेज. So when I am saying I have to calculate the beta of JK Tyre on the basis of the beta of this peer group, so average is coming 1, so I can say JK Tyre beta is 1. Answer is no. Answer. Do you have to take covariance, correlation between each? No. So let I state 2-3 statements. First statement, beta is a measure of systematic risk. Yes or no? Yes. It means it tells us the volatility. It tells us about the volatility, or we can say it tells us about the risk. Now let I say there are two companies, one company is using 20% debt and one company is using 40% debt in its capital structure. एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में 20% का डेट है, दूसरी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में 40% का डेट है. So according to you, which company is more risky? कंपनी A या कंपनी B? कंपनी A, कंपनी B, क्योंकि जो कंपनी ज्यादा डेट यूज करती है उसके ऊपर रिस्क ज्यादा है, फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है. सो कैन आई से अगर इसके ऊपर रिस्क ज्यादा है तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होगी. Yes, sir. Yes. So generally what happens, those companies which use higher component of debt, their beta is higher. तो मैं कहता हूं कि मान लीजिए एमआरएफ का बीटा 1.2 है, लेकिन इसमें इक्विटी कितना है? सर एक डाउट है, अभी आप बोल रहे हो कि अगर डेट ज्यादा है तो वी अज्यूम दैट वो कंपनी का बीटा ज्यादा होगा. दैट मींस अज्यूम नहीं, जनरली होता है. हाँ होता है, बीटा ज्यादा होता है, बट बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क नो. बट अगर कंपनी के डेट का बात कर रहे हो तो नहीं सिस्टमैटिक रिस्क नहीं, वो तो हमने रिलेट किया कि मार्केट में इतना मूवमेंट आया तो स्टॉक में कितना मूवमेंट आया, वो ये बता रहा है हमें. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज सिस्टमैटिक रिस्क. लेकिन लॉजिकली देखिए, मैं कहता हूं इकोनॉमी में रिसेशन आएगा
तो जिन कंपनीज में ज्यादा डेट है तो क्या उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं होगा? उनके बैंकरप्सी के चांसेस ज्यादा हैं या कम है? तो ज्यादा ही है। उसमें उनके डूबने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उनके शेयर प्राइसेस में एकदम क्रैक आएगा या नहीं आएगा? इसी तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है, एकदम कंपनी की सेल्स बढ़ जाती है, उनकी फिक्स्ड कॉस्टिंग थी, तो फिक्स्ड कॉस्टिंग को सुपरसीड करके प्रॉफिट भी एकदम बढ़ जाएंगे। तो प्रॉफिट एकदम बढ़ जाएंगे तो क्या उनके शेयर प्राइसेस में एकदम तेज मूवमेंट नहीं आएगी? तो अगर हम बीटा कैलकुलेट करेंगे तो वो हायर ही तो निकल कर आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब मार्केट वोलेटिलिटी से ज्यादा उनका वो उद्देश्य। भाई भाई मार्केट वॉलेटिलिटी, ये तो हम कनेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी होती है तो स्टॉक में कितनी होती है। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं मार्केट के कारण स्टॉक में वॉलेटिलिटी हो रही है। वी आर नॉट हाँ, सेइंग दैट आई गॉट। वो ही तो बीटा बताता है वैसे, मार्केट हाँ वोलेटिलिटी के हिसाब से कितना स्टॉक में वोलेटिलिटी आया। हाँ, it is not telling us that how much movement in the stock is because of market. Reasons are specific reasons. Reasons can be specific reasons. We are just connecting कि मार्केट में इतना मूवमेंट आता है तो स्टॉक में कितना आता है। इज इट फाइन? ठीक, तो मान लीजिए इस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, दिस कंपनी इज यूजिंग 60% इक्विटी 40% डेट, दिस कंपनी इज यूजिंग फॉर एग्जांपल 70% इक्विटी 30% डेट, दिस कंपनी इज यूजिंग हाउ मच, लेट अस से 80% इक्विटी 20% डेट, और इस कंपनी का मान लीजिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, दिस कंपनी इज यूजिंग 75% इक्विटी 25% डेट। तो क्या मैं सिंपली एवरेज ले सकता हूं? आंसर इज नो, क्योंकि इसका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, पीयर कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है। सो आई कैन नॉट सिंपली टेक the average of these betas as the beta for JKTI. So what I should do, I should change this beta according to the capital structure of this beta of this company. We should change beta according to the capital structure of this company, because we know capital structure plays a role in beta. So what happens? So what is the step? First, I unlever the beta. What do we mean by unlevering the beta? तो जितनी भी ये कंपनीज हैं इनके बीटा को मैं क्या करूंगा? अनलीवर करूंगा। अनलीवर का मतलब अगर ये कंपनीज डेट यूज नहीं करें तो इन कंपनीज का कितना बीटा होगा? If these companies do not use debt, so how much will be the beta? That is called unlevered beta. It means we are removing the leverage component. Leverage means debt component. So how do we calculate the unlevered beta? तो हम क्या करेंगे, इस हर कंपनी का unlevered beta कैलकुलेट करेंगे। And what is the formula to calculate unlevered beta? That is beta divided by 1 plus debt equity ratio 1 minus tax rate. So अगर मैं MRF का unlevered beta निकालूं, मान लीजिए टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट इज 25%, दिस इज माय टैक्स रेट। तो क्या होगा, बीटा कितना, बीटा इज 1.2, 1 प्लस दिस इज डेट, दिस इज नॉट डेट इक्विटी रेशियो, दिस इज इक्विटी परसेंटेज, डेट परसेंटेज। तो मान लीजिए जो डेट इक्विटी रेशियो है वो कितना है हमारा, इसका अगर हम बात करते हैं तो डेट कितना है हमारा, सो 40 डिवाइड बाय 60 वी कैन डू, सो 40 डिवाइड बाय 60, so it comes out as 0.667. So debt equity is coming 0.67. So 1 minus tax rate is 25%. So whatsoever beta will come, that is called as unlevered beta. It means we are believing that company is using 100% equity, company is not using any debt. So this beta, unlevered beta, assumes that company do not use any debt. So this is how we can calculate unlevered beta.
This is how we can calculate unlevered beta. Logically tell me, will this unlevered beta be greater than this beta or lower than this beta? Will this unlevered beta be greater than this beta or lower than this beta? Greater. Lower, because here company is using debt, here we are removing the impact of debt. तो अगर debt के impact को हम remove कर रहे हैं तो company अब कम risky ये हो गई है। UB क्या है सर? Unlevered beta. So my unlevered beta will be lesser than this beta. But why do we calculate unlevered beta? Because only remove the debt aspect. To remove the debt aspect, and then again we will relever it because we want to incorporate this capital structure. क्योंकि हम दूसरी कंपनीज के बेसिस पर अपनी कंपनी का बीटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी कंपनी के बेसिस पर अपनी कंपनी का बीटा निकालने की कोशिश करेंगे, टारगेट कंपनी का बीटा निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमें जो टारगेट कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग वही कैपिटल स्ट्रक्चर तो डालना चाहिए। तो मैंने कहा पहले तो बट फिर हम हर एक कंपनी का अनलीवर्ड बीटा निकालेंगे क्या? Yes, we calculate unlevered beta for every company. Yes. And then फिर हर एक कंपनी का रीलीवर्ड बीटा निकालेंगे। कौन से कंपनी का? जेके टायर का? हर कंपनी का ही हम लोग रीलीवर्ड बीटा निकालेंगे। अच्छा, यूजिंग 75-25%। हाँ, और फिर उसका सेम नहीं आ जाएगा सबका रीलीवर्ड बीटा? रीलीवर्ड बीटा में जो डेट इक्विटी लेंगे वो 75:20 नहीं, सबका सेम कैसे होगा? हर किसी का अनलीवर्ड बीटा भी तो डिफरेंट है, ये नंबर्स तो डिफरेंट है, अनलीवर्ड बीटा तो सबका डिफरेंट आएगा। अगर अनलीवर्ड बीटा सबका डिफरेंट है तो रीलीवर्ड बीटा भी तो सबका डिफरेंट है। हाँ सॉरी, और ये जो 1.21 ये हिस्टोरिक बीटा है जो आपने ये वो बीटा है जो इस तरीके से निकला था हर कंपनी का। अच्छा, कोवेरियंस। क्या ये पॉइंट क्लियर होता है चिन्मय? इज इट फाइन? सर ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे सर, बीटा का सेम डिनोशन, क्या मालूम कौन सा बीटा है? नहीं, this beta is simply this beta. When I am saying UB, it means unlevered beta, and when I say RB, it means relevered beta. Now whatsoever beta is this coming, whatsoever unlevered beta we have, so this unlevered beta is according to 100% equity. We are saying this is 100% equity. It means we have removed the impact of debt. Now we have to relever it according to this capital structure, target company's capital structure. So what I will do, we have to relever it. So how can I do? Unlevered beta into 1 plus debt equity of target company's capital structure 1 minus T. So in this manner, I will relever it. So first I get the beta of the peer company, then I unlever it, and then I relever it. Then only I can use this relevered beta as my beta for valuation purpose. Is this point clear? So now let I just show you. So you can see. So we can calculate the beta of a comparable company on the basis of group of peer companies. So first we estimate the beta of the comparable company or companies. Then we unlever it and we call that unlevering. जो unlevered beta होता है उसी को हम asset beta भी बोल देते हैं. Unlevered beta and asset beta both means same. So we unlever it. So you can see the same formula which I showed you. And then we relever it. तो relever जो बीटा होता है उसे ही हम टारगेट बीटा भी बोल देते हैं. उसे ही हम टारगेट बीटा भी बोल देते हैं.
क्योंकि टारगेट कंपनी का बीटा निकाल रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टारगेट बीटा। इज इट फाइन? शनय एंड चिन्मय, इज इट फाइन? Yes, sir. Yes, sir. So now there is one more concept here, that is called flotation cost. देखिए, when we raise the money, so for example investment bankers are assisting us, तो वो फीस चार्ज करते हैं। तो क्वेश्चन है कि उस फ्लोटेशन कॉस्ट को कैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये फ्लोटेशन कॉस्ट एक सब्सटेंशियल पार्ट होता है। जनरली जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, जितने का भी आईपीओ आता है, जितना भी फंड रेज होता है, उसमें से 2 to 7% तो एज अ फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को ही चला जाता है। सो इट इज वेरी सब्सटेंशियल पार्ट। सो हाउ वी शुड अकाउंट फॉर दिस फ्लोटेशन कॉस्ट? तो हमें क्या करना चाहिए, करेक्ट मेथड है क्या कि जो भी हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो है, जो भी हम लोगों का आउटफ्लो होगा, तो उसमें हम ये फ्लोटेशन कॉस्ट को भी इंक्लूड कर लें और इसको भी आउटफ्लो मान लें। इस तरीके से हमें प्रोजेक्ट की एनपीवी जो निकालेंगे तो वो इजीली निकाल सकते हैं। सो हाउ टू ट्रीट द फ्लोटेशन कॉस्ट? इट इज बेटर, द करेक्ट मेथड इज दैट कि जितना भी हम लोग दिस इज अ काइंड ऑफ यू कैन से दलाली। इट मींस इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हम क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं ताकि वो फंड रेज करवा रहे हैं हमें, तो इट इज जस्ट लाइक कमीशन। तो ये कमीशन बिजनेस के लिए, प्रोजेक्ट के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो आउटफ्लो है, तो सिंपली इसको भी हम आउटफ्लो मान के चलें। सो इन दैट मैनर व्हाट वी कैन डू, वी कैन ट्रीट इट। Yes, please try these two questions. Is it done? फर्स्ट वाला तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। So should we do? हाँ सर। ठीक है। An analyst is estimating an equity beta for J company, which is a thinly traded stock. J is in the same line of business as Cars company, which trades more frequently and has a beta of 1.2. तो हमें निकालना किसका है? हमें एक्चुअल में बीटा किसका निकालना है? तो ये जो जे कंपनी है ये थिनली ट्रेडेड है, तो इसके बीटा पर हम रिलाय नहीं कर सकते हैं। वी हैव, देयर इज अ कास्ट कंपनी जिसका बीटा कितना है, 1.2। J's debt to equity ratio is 2 and Cars debt to equity ratio is 1.6. तो अगर हम कास्ट कंपनी के बीटा को पहले अनलीवर करेंगे, अगर पहले हम लोग इसके बीटा को अनलीवर्ड करेंगे तो किस बेसिस पर करेंगे? कास्ट कंपनी का ही जो डेट इक्विटी रेशियो है उसी के बेसिस पर तो हम उसको अनलीवर करेंगे। एंड यू कैन सी इट, you can see it. So what is the formula? This beta divided by 1 plus debt equity ratio of Cars company is 1.6. So 1.6 into 1 minus 30%. This is my unlevered beta. And now I have to calculate what? Relevered beta for J. And that is also called target beta. So whatsoever beta is coming here, so we will take that unlevered beta and we have to multiply it 1 plus debt equity ratio. So what is debt equity ratio for J debt? J, that is 2. So I will use this 2 into 1 minus 30%. So this will be my, So this relevered beta is unlevered beta into 1 plus debt equity ratio of the target company. किसका, जिसका हमें बीटा निकालना है, किसका बीटा निकालना है? जे का बीटा निकालना है। तो जे की डेट इक्विटी रेशियो कितनी है? 2. सो 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द टारगेट कंपनी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इज इट फाइन? tax.
So sir, एक doubt था, why do we take the tax rate into consideration for relivered beta? अब दोनों में तो ले रहे हैं, अनलीवर्ड में भी ले रहे हैं, रीलीवर्ड में भी, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट द डेट इज टैक्स एडजस्टेड, वी हैव अ टैक्स बेनिफिट। अगर हम उस टैक्स बेनिफिट को इनफाइनाइट तक के टैक्स बेनिफिट को डिस्काउंट करके लेकर आते हैं, तो जितना हमारा टैक्स रेट है उतना हमें बेनिफिट मिल जाता है, तो इसलिए हम उसे टैक्स रेट से एडजस्ट करते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स है टैक्स? देखिए, अगर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि अगर हम लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं, बिकॉज डेट इंटरेस्ट पेमेंट्स आर टैक्स डिडक्टिबल आइटम, सो वी हैव अ टैक्स सेविंग। अगर कंपनी डेट यूज करती है तो टैक्स सेविंग्स होती है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो एक तरीके से टैक्स सेविंग्स हो रही हैं, इनफाइनाइट तक टैक्स सेविंग्स होंगी, तो इनफाइनाइट तक की टैक्स सेविंग्स को अगर हम कैपिटलाइज करते हैं तो हमारा डेट उतना कम, एक तरीके से उतना कम हमारा डेट हो जाता है, इसलिए हम लोग इस टैक्स रेट को एडजस्ट करते हैं। इज इट फाइन? इज इट फाइन चिन्मय, शनय? Yes, sir. Yeah. So now the second is B, treated as a part of each project's initial cash outflow. We know it. So in this manner, we can calculate the relevered, unlevered beta.